Okay, I am. I was telling you that the about the designation of Ly steel, and I have told you that the Ly steel may be of low Ly steel, medium Ly steel, or high Ly steel. But the designation is of two types: rule 1 and rule 2. Rule 1 is for low and medium Ly steel, and rule 2 is for high Ly steel. The rule, the designation rule is different. First, how you identify the which Ly steel is low and which Ly steel is high. The to identify the low and high Ly steel, you have to see the total percentage of alloying element. If the total percentage of alloying elements is less than 10%, then it is either low or medium Ly steel. If it is greater than 10%, then it is high Ly steel. So this is the guidelines to identify the low, medium, and high Ly. The differentiation between low and medium is not yet so suitable. So you have to only remember that if the total percentage of alloying element is less than 10%, then it can be either low or medium. No matter it is low or medium, the designation rule is same. But if it is greater than equal to 10%, then it is the high Ly steel, and the designation rule is different. Clear? Now come to the low and medium Ly steel. Here, low and medium Ly, you must concentrate on the lecture very ओके आप लोग बड़े ध्यान से इसको देखिए, चूँकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. द डेजिनेशन ऑफ एलवाई स्टील इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इट क्रिएट्स लॉट्स ऑफ confusion if you consult the textbook. If you want to understand this concept by textbook, it creates lots of confusion. So look here, listen carefully and constantly. Don't miss this concept, because it is a very important concept about the Ly steel. First, see the example of low and medium Ly steel. Low and medium Ly steel is the steel which has less than 10% alloying elements. Clear? The low and medium Ly steel is the steel which has less than 10% alloying elements. So how it is designated? For designation, you have to remember that first you have to write a figure containing or representing 100 times the average percentage of carbon, like the plain carbon steel. In the plain carbon steel also, the first figure is the 100 times of the average percentage of carbon. So also in low and medium Ly steel, the first figure will be 100 times of the average percentage of carbon. After that, chemical symbols for major alloying elements. Hello? Hello? Yes, sir. Yes, sir, आ रही है आवाज. My cursor is showing or not? Yes, sir. मेरा कर्सर आप लोग को दिखाई दे रहा है? Yes, sir. Okay. Okay. Like the plain carbon steel, also in the low and medium Ly steel, the first figure will be 100 times of the average percentage of carbon. After that, the chemical symbols for major alloying elements is written. Look here, it is circled major alloying, means you have to identify
in several allying elements, which one or which one is major? Which one is major allying? Because in designation only major allying elements comes out. Clear? Sometimes this major allying element is also called significant allying element. It is also called significant allying element. Means in designation of low and medium alloy steel, only significant or major allying elements comes out. Insignificant allying elements does not come in the designation of alloy steel. In the plain carbon steel, previously we have seen that after average percentage of carbon, a letter C comes out. Yes, speak. Tell me. आपकी आवाज़ कट क्या आ रही है? Okay. औरो ऋषित, मेरा फ़ोन यहाँ पे डालो, ठीक से उसे नहीं मिल रहा होगा मुझे। Okay, now my voice is coming. Hello. Hello. Yes, sir. Now voice is coming clearly. Yes, yes, yes. Okay. Now look here. We have to identify among the allying elements which one is significant allying element and which one is insignificant allying element. In designation only significant allying elements comes out or major allying elements comes out, and the rule is to identify the significant allying elements is it must be greater than equal to 0.5%. It must be greater than equal to 0.5% except Mn, because for Mn the rule is Mn is included only if the content of Mn is greater than equal to 1%. Mn के लिए अलग रूल है, Mn के अलावा सारे allying एलिमेंट्स के लिए एक ही रूल है, it must be greater than 0.5%, and for Mn it must be greater than equal to 1%. इससे हम पता कर लेंगे कि which allying elements is significant allying element. तो after this average percentage of carbon you have to write chemical symbol for significant allying elements, and for example you just look here one table is displayed, that is the elements. This is the MF is the multiplying factor. Multiplying factor means in the average percentage of carbon, in the first figure, the average percentage of carbon is multiplied by 100. So for carbon the multiplication factor is 100. Similarly for allying elements, multiplication factor you have to remember, because it is the standard multiplication factor. Just like suppose the allying element is chromium, then multiplication factor will be 4. If the allying element is vanadium V, then the multiplication factor will be 10. And if allying element is S sulfur, then multiplication factor will be 100. So you have to remember this multiplication factor table for the allying elements. Generally, at least you must remember the multiplication factor for chromium, cobalt, nickel, Mn,
एल्युमिनियम, वेनेडियम, Ti, Mo and S. At least these elements are very important for alloying elements. So at least remember these elements: chromium, cobalt, nickel, Mn, aluminium, vanadium, copper, Ti, Mo and sulfur. These are the important alloying elements. So you have to remember these multiplication factor table. So in the designation of low and medium alloy steel, first you have to write 100 times of the average percentage of carbon. After that, chemical symbols for major alloying elements by after that the percentage content of these alloying elements by multiplying multiplication factor. Okay, everyone, the rule is understandable? Everyone clear the rule? Please reply me. Yes, sir. आपको क्या करना है इसमें, सबसे पहले कार्बन का परसेंटेज जो है उसको 100 से मल्टीप्लाई करके लिखना है। जैसे मान लीजिए आपका कार्बन का परसेंटेज आता है 40%, 0.40, सो मल्टीप्लाई इट विथ 100, इट कम्स 40. सो फर्स्ट राइट 40. आफ्टर दैट सपोज आपका सिग्निफिकेंट एलवाइंग एलिमेंट्स निकेल है, तो आफ्टर दैट राइट निकेल, Ni. After that write the percentage of Ni. Suppose Ni का परसेंटेज आपका आता है सपोज 0.8%, तो 0.8% अगर निकेल का परसेंटेज आता है तो निकेल का मल्टीप्लिकेशन फैक्टर कितना है 4, तो मल्टीप्लाई 0.8 by 4, इट कम्स 3.2 एंड 3.2 को आप इसको अप्रोक्सीमेट कीजिए तो 3 हो गया, तो निकेल के बाद लिखेंगे 3, तो आपका पूरा डेजिग्नेशन हो गया 40 Ni3. समझ में आ गया? सर एक बार रिपीट करना। जैसे कि मान लीजिए कार्बन का परसेंटेज 0.40% है, तो 0.40 को मल्टीप्लाई कीजिए 100 से, कितना आएगा 40, तो पहले आप 40 लिखिए। 40 के बाद क्या लिखेंगे, केमिकल सिंबल ऑफ सिग्निफिकेंट एलवाइंग एलिमेंट। मान लीजिए कि सिग्निफिकेंट एलवाइंग एलिमेंट निकेल है, तो 40 के बाद क्या लिखेंगे आप, निकेल, Ni. Ni के बाद क्या लिखेंगे, Ni का कितना परसेंटेज है। अब सपोज कीजिए कि Ni का परसेंटेज 0.8% है, तो अगर 0.8% निकेल का Ni का परसेंटेज है और आपको पता है कि Ni का मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 4 है, तो 0.8 को आपको 4 से पहले मल्टीप्लाई करना होगा, तो 0.8 इंटू 4 कम्स आउट 3.2. 3.2 को हम अप्रोक्सीमेट इंटीजर में लिखेंगे तो 3 लिखेंगे, तो निकेल का परसेंटेज हो गया 3, तो हम यहाँ लिखेंगे 40 Ni3. क्लियर? यस सर. ओके, अब हम निकेल को ही मेजर एलवाइंग एलिमेंट क्यों बोला, वो डिपेंड करेगा कि निकेल का एक्चुअल परसेंटेज कितना है। जैसे मैंने एग्जांपल में 0.8% आपको बताया, तो 0.8% इज ग्रेटर देन 0.5%, सो इट इज सिग्निफिकेंट एलवाइंग एलिमेंट। अगर ये 0.8 की जगह 0.3% होता तो ये सिग्निफिकेंट नहीं होता, तो तब इसको डेजिग्नेशन में हम नहीं लाएंगे। अगर Mn भी है एलवाइंग एलिमेंट, तो Mn के लिए अलग रूल है। Mn के लिए चेक करना होगा कि वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1% है कि नहीं, तभी उसको हम डेजिग्नेशन में लाएंगे। अगर 1% से कम है Mn का परसेंटेज, तो उसको डेजिग्नेशन में नहीं लाएंगे। क्लियर? क्लियर? सर सभी को मतलब जो 0.5 के ऊपर होने को चूज करना है, मतलब डेजिग्नेशन। हाँ, चूँकि 0.5% से ऊपर होगा तभी वो सिग्निफिकेंट एलवाइंग एलिमेंट्स कहलाएगा।
और डेजिग्नेशन में हमेशा सिग्निफिकेंट एलवाइंग एलिमेंट्स जाता है, क्योंकि एक स्टील में हो सकता है कि 20-22 एलवाइंग एलिमेंट्स हो, लेकिन उसके डेजिग्नेशन में 4-5 ही आते हैं, क्योंकि वही 4-5 सिग्निफिकेंट एलवाइंग एलिमेंट्स। क्लियर? Yes, sir. Okay, now see an example. This is an example. Suppose you have to designate the alloy steel and the chemical composition is given here. Carbon from 0.12 से लेके 0.20%, silicon this one, manganese this one, nickel this one, chromium this one. This chemical composition is given for a alloy steel, and for this you have to designate it. Okay, so first step is calculate the average percentage of all elements. So the average percentage of carbon will be 0.16%, average of 0.12 and 0.20, it comes out 0.16%. The average percentage of silicon comes out 0.25%. The average percentage of manganese comes out 0.8%, nickel 0.8%, chromium 0.6%. First you have to calculate the average percentage of all elements. After that, this is the average percentage of carbon, so just multiply this by 100. 0.16 multiplied by 100 comes out 60. So write here 16. After that, identify which one is significant alloying element. The percentage of silicon is 0.25% and it is less than 0.5%. So it is not the significant alloying element. So it is not included in the designation. See here it is written not included. क्योंकि सिलिकॉन का परसेंटेज 0.25% है और ये 0.5% से कम है, इसलिए ये सिग्निफिकेंट एलवाइंग एलिमेंट नहीं है। अगर ये सिग्निफिकेंट एलवाइंग एलिमेंट नहीं है तब हम इसको डेजिग्नेशन में इंक्लूड नहीं करेंगे। क्लियर एवरीवन? Yes, sir. नाउ कम टू द मैग्नीज। मैग्नीज का कितना परसेंटेज आया है? 0.8%। एंड मैग्नीज के लिए रूल क्या है कि वो 1% से ज़्यादा होना चाहिए तभी वो सिग्निफिकेंट कहलाए। तो मैग्नीज के केस के लिए 0.8% है, ये भी लेस देन 1% है, इसलिए इसको भी नॉट इंक्लूडेड, ये भी इंक्लूड नहीं होगा। उसके बाद निकेल पे आइए। निकेल का परसेंटेज 0.8% है एंड इट इज़ ग्रेटर देन 0.5%, इसलिए ये सिग्निफिकेंट एलवाइंग एलिमेंट है। सिमिलरली क्रोमियम का 0.6% आया है, इट इज़ ऑल्सो ग्रेटर देन 0.5%, सो इट इज़ ऑल्सो द सिग्निफिकेंट एलवाइंग एलिमेंट। तो इस स्टील में दो सिग्निफिकेंट एलवाइंग एलिमेंट हैं, निकेल एंड क्रोमियम। अब हम निकेल का मल्टीप्लिकेशन फैक्टर देखेंगे और क्रोमियम का देखेंगे। तो आप इस टेबल में देखेंगे अगर, तो निकेल का और क्रोमियम का दोनों का मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 4 है। तो इसके एवरेज परसेंटेज को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मीन्स यू हैव टू मल्टीप्लाई 0.8% एंड 0.6% बाई 4। सो हियर इट इज़ रिटेन 0.8 into 4 equal to 3.2. Just convert it to the closest integer. Closest integer comes out 3. अगर यहाँ 3.2 की जगह 3.4 होता तब भी ये 3 ही आता क्लोजेस्ट इंटीजर। अगर 3.5 होता तब यहाँ क्लोजेस्ट इंटीजर 4 हो जाता। 3.6 होता ये तब क्लोजेस्ट इंटीजर यहाँ 4 हो जाता। 3.7 होता है तब यहाँ क्लोजेस्ट इंटीजर भी अगेन 4 होता। मीन्स 0.5 से नीचे हो तो आपको 3 होगा, अगर 0.5 या उससे ज़्यादा हो तो ये 4 होगा क्लोजेस्ट इंटीजर। क्लियर? सिमिलरली फॉर क्रोमियम
it is the average percentage is 0.6%, then multiplication factor for chromium is 4. So multiply this 0.6 by 4, it comes out 2.4. Again write this 2.4 to the closest integer and it comes out 2. Clear everyone? एवरीवन? Yes, sir. तो यहाँ तक सबको सारे स्टेप्स पता चल गए। सबसे पहले हमने क्या किया, एवरेज परसेंटेज निकाला सबका। उसके बाद कार्बन का जो एवरेज परसेंटेज आया उसमें 100 से मल्टीप्लाई किया और उसको यहाँ लिखा, डेट इज 16। उसके बाद जितने एल्वाइंग एलिमेंट्स हैं उसमें हमने पता किया कि कौन सा सिग्निफिकेंट है, कौन सा सिग्निफिकेंट नहीं है, क्योंकि डेजिग्नेशन में सिर्फ सिग्निफिकेंट एलिमेंट ही जाएगा। तो हमने यहाँ से पता किया कि सिर्फ निकेल और क्रोमियम ही सिग्निफिकेंट एलिमेंट है। अब एक बार जब सिग्निफिकेंट एलिमेंट पता चल गया तो अब हम इसको परसेंटेज को मल्टीप्लिकेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करके डेजिग्नेशन में ले जाएंगे। तो निकेल का परसेंटेज आया था 0.8%, निकेल का मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होता है 4, तो आ गया ये 3.2। इसको हमने 3 में अप्रोक्सीमेट किया। सिमिलरली क्रोमियम का परसेंटेज आया था 0.6, इसका भी मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होता है 4, तो ये आ गया 2.4। तो इसको हमने अप्रोक्सीमेट किया 2 में। अब हम डेजिग्नेशन लिखेंगे 16, Ni 3, Ni का कितना है 3, Ni 3, क्रोमियम का कितना है 2, तो Cr 2। दिस इज द डेजिग्नेशन ऑफ दिस सिस्टम। क्लियर? हमने ये रूल क्यों अप्लाई किया, तो आप चाहे तो यहाँ चेक भी कर सकते हैं। जितने भी एल्वाइंग एलिमेंट है उसके परसेंटेज को ऐड कीजिए तो ये आएगा 2.45%, जो कि 10% से लेस है, इसलिए ये हमारा लो एलवाई स्टील है। क्लियर? सर हाँ सर, इसमें जो कार्बन का डेजिग्नेशन है 16 लिया हमने, तो ये डेजिग्नेशन हमेशा मतलब पहले आएगा? हाँ, वो तो रूल में ही लिखा है ना। यहाँ पे देखिए ना, सबसे पहले आएगा ये फिगर कंटेनिंग 100 टाइम्स द एवरेज परसेंटेज ऑफ कार्बन। इसके बाद आएगा केमिकल सिंबल्स फॉर एल्वाइंग एलिमेंट्स, और इसके बाद आएगा एवरेज परसेंटेज मल्टीप्लाइड बाय मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। ठीक है? यस सर। अच्छा, अब एक क्वेश्चन और है कि जैसे यहाँ निकेल भी है, क्रोमियम भी है, तो पहले निकेल लिखेंगे कि पहले क्रोमियम लिखेंगे? जिसका वैल्यू ज़्यादा होगा। यहाँ निकेल का वैल्यू 3 है, क्रोमियम का वैल्यू 2 है, तो जिसका ज़्यादा होगा उसको पहले लिखेंगे, निकेल को पहले लिखेंगे। क्लियर? 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 यस सर। अच्छा, अब मान लीजिए निकेल का भी 3 है और क्रोमियम का भी 3 आ जाता है, मान लीजिए दोनों के बराबर आ जाते, तब पहले कौन सा लिखते हैं, निकेल या क्रोमियम? तो उस केस में हम अल्फ़ाबेटिकल लिखेंगे। अगर दोनों के वैल्यू सेम आ जाते हैं तो उस केस में हम अल्फ़ाबेटिकल लिखते हैं। मीन्स अगर निकेल के भी 3 आते, क्रोमियम के भी 3 आते, तो पहले क्रोमियम आता, क्योंकि C है, C अल्फ़ाबेट में पहले आता है, तो पहले क्रोमियम आता है। अगर दोनों के वैल्यू सेम होते तो हम अल्फ़ाबेटिकल लिखें। क्लियर? फटाफट जवाब दीजिए। क्लियर? यस सर, क्लियर। यस सर। अच्छा, अब दूसरा चीज़ जो मुझे बतानी है कि इस डेजिग्नेशन को देख के आप कैसे पता करेंगे कि ये एलवाई स्टील का है कि प्लेन कार्बन स्टील का है?
बताइए इस डेजिग्नेशन को देख के आप कैसे पता करेंगे कि ये प्लेन कार्बन स्टील का है कि एलवाई स्टील का है? सबसे पहला क्लू कि इसमें निकेल है, क्रोमियम है, तो इसका मतलब कि ये क्या है? एलवाई स्टील है। दूसरा क्लू, इसमें सी नहीं है, कार्बन नहीं है कहीं लिखा हुआ, सी लेटर, द लेटर सी इज नॉट रिटन इन द डेजिग्नेशन। ठीक है, सी लेटर सिर्फ प्लेन कार्बन स्टील में लिखते हैं। आप लोग बीच में थोड़ा जवाब दीजिए, मुझे पता चले कि आप सुन भी रहे हैं। ठीक है, तो लेटर सी यहाँ नहीं है, इसलिए एक तो पहला क्लू ये है। दूसरा क्लू ये है कि इसमें निकेल और क्रोमियम है। अगर मान लीजिए कि निकेल और क्रोमियम सिग्निफिकेंट एलवाइंग एलिमेंट नहीं होते, सिर्फ एमएन होता, मैग्नीज होता सिग्निफिकेंट एलवाइंग एलिमेंट, तब यहाँ एमएन आता। तो मान लीजिए आता 16 एमएन, सपोज आता है यहाँ 2, मान लीजिए 16 एमएन 2, तो 16 एमएन 2 भी आपका एलवाई स्टील है, क्योंकि इसमें सी नहीं है। अगर प्लेन कार्बन स्टील होता तो आपको पता है कि प्लेन कार्बन स्टील में क्या आता है, आपका सी आता है, सी। और यहाँ भी एमएन है, मैग्नीज है, लेकिन यहाँ एमएन एलिमेंट का जो सिंबल है एमएन, उसको नहीं लिखते हैं। लेकिन एलवाई स्टील में अगर एमएन होता हमारा सिग्निफिकेंट एलवाइंग एलिमेंट, तो इसमें एमएन लिखेंगे, एमएन जो सिंबल है वो लिखेंगे। क्लियर? अच्छा, तो ये आपका हो गया लो और मीडियम एलवाई स्टील का रूल हो गया। अब नेक्स्ट रूल देखते हैं हाई एलवाई स्टील का क्या रूल है। तो हाई एलवाई स्टील आपको पता है कि इफ़ द एलवाइंग एलिमेंट इज ग्रेटर देन 10%, देन इट इज़ द हाई एलवाई स्टील। तो इसका रूल है कि फर्स्ट राइट ए लेटर कैपिटल एक्स। इसके डेजिग्नेशन में पहला जो फिगर आएगा कैपिटल एक्स आएगा। आफ्टर दैट ए फिगर indicating 100 times the average percentage of carbon. After that, chemical symbol for allying element, each followed by the figure for its average percentage content, rounded off to nearest integer. After that, chemical symbol to indicate especially added elements to attain desired properties. देखिए आपको इसमें लुक हियर इन द हाई एलवाई स्टील, फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई द एलवाई स्टील इज हाई, एंड द रूल और गाइडलाइंस टू आइडेंटिफाई इज दैट द टोटल परसेंटेज ऑफ एलवाइंग एलिमेंट विल बी ग्रेटर दैन 10%. नाउ कम टू द डेजिग्नेशन. इन द डेजिग्नेशन द फर्स्ट लेटर विल बी कैपिटल एक्स. आफ्टर दैट the 100 times of the average percentage of carbon. After that, chemical symbol for allying elements and its percentage. ओके, अब देखिए यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है X15 Cr क्रोमियम 25 Ni12 निकेल 12. ओके, तो लो एंड मीडियम एलवाई स्टील में मल्टीप्लिकेशन फैक्टर यूज होता है। लो एंड मीडियम एलवाई स्टील जैसे पहले देखा हमने, इसमें आपको मल्टीप्लिकेशन फैक्टर यूज हुआ है 4. ये जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर का टेबल था। लेकिन हाई एलवाई स्टील में मल्टीप्लिकेशन फैक्टर यूज नहीं होता है किसी भी एलवाइंग एलिमेंट। उसका जो परसेंटेज है वो डायरेक्ट आता है सीधा। जैसे ये जो दिया हुआ है X15 Cr25 Ni12, तो चूंकि सबसे पहले X है तो ये आपको आइडेंटिफाई करा देगा डेट इज द हाई एलवाई स्टील, बिकॉज ओनली इन द हाई एलवाई स्टील द लेटर X कम्स आउट. आफ्टर दैट 15 इज द
100 times of average percentage of carbon. Now it means the average percentage of carbon will be 0.15%. Then by multiplying 100 we can write 15. Clear? Clear? Yes, sir. After that, significant alkyne element chromium Cr, and the percentage of Cr is 25% directly. Directly the chromium percentage will be 25%. In the high Ly steel, no multiplication factor is used, so this figure is representing directly the percentage of chromium. क्योंकि यहाँ कोई मल्टीप्लिकेशन फैक्टर यूज ही नहीं हुआ है, तो ये डायरेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है क्रोमियम के परसेंटेज। Cr25 मीन्स क्रोमियम कितना है 25%, Ni12 मीन्स निकल कितना है 12%। चूँकि यहाँ कोई मल्टीप्लिकेशन फैक्टर यूज नहीं हुआ है, लेकिन वही हम पिछले सेक्शन में जाएं जहाँ पर हमने ये लो एंड मीडियम एलॉय स्टील पढ़ा है। वहाँ ये चूँकि लो एंड मीडियम एलॉय स्टील है तो Ni3 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि निकल 3% है, इसका मतलब ये हुआ कि निकल कितना है। क्योंकि आपने 4 मल्टीप्लिकेशन फैक्टर यूज किया है तो आप बोलेंगे निकल का परसेंटेज है 3/4। क्लियर ना? निकल का परसेंटेज कितना है 3/4, क्रोमियम का परसेंटेज कितना है 2/4। चूँकि आपने यहाँ 4 मल्टीप्लिकेशन फैक्टर यूज किया है, लेकिन हाई एलॉय स्टील में कोई मल्टीप्लिकेशन फैक्टर यूज नहीं होता, इसलिए डायरेक्टली आपको देगा परसेंटेज ऑफ क्रोमियम। क्रोमियम कितना परसेंट है 25%, निकल कितना देगा 12%, क्योंकि यहाँ 12 लिखा हुआ है। क्लियर? Yes, sir. So this figure X15 chromium 25 nickel 12 represents high alloy steel having average 0.1% carbon and 25% chromium and 12% nickel as significant alkyne elements। तो ये आपके स्टील के जो रूल आपको जानने हैं डेजिग्नेशन के, वो मैंने आपको बता दिए। यू हैव टू स्टडी फोर टाइप्स ऑफ रूल। फर्स्ट फॉर प्लेन कार्बन स्टील, सेकेंड फॉर कटिंग स्टील, फ्री कटिंग स्टील, थर्ड फॉर लो एंड मीडियम एलॉय स्टील, एंड फोर्थ फॉर हाई एलॉय स्टील। यू हैव टू स्टडी 4 different designation rules for 4 different types of steel. Okay, now firstly come to the designation of cast iron. It is very simple. You know that if the percentage of carbon is greater than 2%, then it is the cast iron. And there are 3 types of cast iron: grey cast iron, malleable cast iron, and nodular cast iron. That is also called spiral graphite or also called ductile cast iron. But this name is more popular, spiral graphite, and it is used in the designation. Spiral graphite means Sg. Look here, Sg is used in the designation. So cast iron is of 3 types: grey cast iron, malleable cast iron, spiral graphite. The malleable cast iron is again of 3 types: black heart, pearlitic, white heart. So designation is simple. For grey cast iron it is Fg, for black heart it is Bm, B for black heart, M for malleable, for pearlitic Pm, P for pearlitic, M for malleable, for white heart it is Wm, W is for white heart, M is for malleable.
वो कुकर सीटी दे रहा है या आवाज़ गड़बड़ हो रही है यहाँ? कुकर सीटी दे रहा है, आवाज़ गड़बड़ हो रही है। हेलो हेलो okay, now the designation is just very simple. For grey cast iron it is FG, G for grey cast iron, FG. अगर F लगा हो कैपिटल F, it means this 200 represents ultimate tensile strength. Okay, I will explain it later. First you look here, for grey cast iron you have to write FG. For malleable cast iron, and in the malleable cast iron there are three types. Black heart, if the cast iron is black heart malleable, then use BM. If it is pyrolytic malleable, then use PM. If it is white heart malleable, then use WM. And if it is